Dear students, welcome to my channel We Care For You Academy. This video is related to the chapter 3, class 10th maths, pair of linear equations in two variables. So in this particular chapter we will understand how to write these two equations, what are the conditions behind the coefficients, and how can we solve these two equations graphically or geometrically. So let us see. Pair means two, linear means degree 1, and two variables means xy. The examples are general form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the second equation will be a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where xy are variables and a1, a2, b1, b2, c1, c2 are the coefficients. So important thing is that the ratio of these coefficients a, b, c provides us important information. For example, there are several cases on the basis of the ratio of these coefficients. The case 1, the solution of these two lines will be like this. In that particular case, these two lines intersect each other at a particular point. So it is called intersecting lines. The mathematical condition for intersecting lines is a1 upon a2 is not equal to b1 upon a2. मीन्स सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 के साथ 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 2 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे 2 के साथ 4 होगा तो 2 अपॉन 4 विल बी 1/2, 1/2, तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is the mathematical condition for intersecting lines. Meaning is that for intersecting lines there will be only one solution, which is also called the unique solution, and in that particular case these two lines are consistent. Consistent का meaning हो गया, यदि if we have to recall or we have to revise or we have to keep in our mind, the meaning of consistent is if the two equations have solutions, so then they are consistent. If they don't have any solution, they are not consistent. तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें कि ये पूछा जाएगा कि वेदर चेक वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट. So simply apply the mathematical conditions and you can decide whether they are consistent or not. So what about the case 2? In case 2, the two lines are parallel. Parallel lines means they will never meet each other, or we have to say they will meet at the infinity. Mathematical condition is the ratio of coefficients a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. In that particular case there is no solution, and once there is no solution they are inconsistent. याद रखने के लिए keep in mind, if there is no solution they are inconsistent, if there is solution they are consistent. Simple. The third situation is coincident. Coincident का मतलब there are two lines will overlap each other, और ओवरलेप करने के लिए व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. There can be so many examples in your NCERT books, but important thing is that you have to understand the concept. Once the concept is clear, you can do all the numericals. So there are infinite many solutions. Why? Because they are overlapping each other. तो कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा. तो दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. सो इन दिस चैप्टर यू मस्ट आल्सो नो हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली and numerically or also we can also say algebraically. So let us take one example of such kind of equation and how to solve them. So the example is the two equations are given, x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12. कहता है कि चेक ग्राफिकली, उनको ग्राफिकली चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. तो उसकी कंसिस्टेंसी ग्राफिकली हमें कैलकुलेट करनी है. इफ सो, कंसिस्टेंट का तो मतलब सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन है तो डिटरमाइन द सॉल्यूशन, तो सोल्व देम ग्राफिकली, ऑल्सो सोल्व न्यूमेरिकली. ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि सेम क्वेश्चन में वी कैन डू सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कंसिस्टेंसी.
तो कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैथमेटिकल कंडीशन याद करो फर्स्ट वाली, A1/A2 वाज नॉट इक्वल टू B1/B2। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो लेटस से, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -6 है क्योंकि ये इधर चला जाएगा LHS में। सिमिलरली A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/-3 क्योंकि ये तो 1/2 आया, ये -1 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से कि दे आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हुई ना। तो ये कंसिस्टेंसी चेक हो गया। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दीज टू इक्वेशंस। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए हमेशा सबसे पहले ग्राफ कब बनता है, जब वी हैव पॉइंट्स। तो पॉइंट्स सोल्व करने के लिए एक्स और वाई का इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। तो पहले तो 2 पॉइंट यदि मिल गए तो अच्छा है, बट अदरवाइज वी कैन हैव 3, 4, 5 पॉइंट्स और उनसे यू कैन डू द ग्राफ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ मैं पहले। तो जैसे ही मैं एक्स को 0 रखता हूँ तो वाई बिकम्स 6/3 तो 2। तो इस तरह से मैंने इसको फिल कर लिया। फिर मैंने एक्स वाई की वैल्यू 0 रखी, एक बार वाई को 0 सब्सटीट्यूट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 6 आ गई। तो ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया। इस लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 0,2, तो 0,2 ये पहला पॉइंट हो गया, दिस वन यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट हो गया 6,0, तो पहले 6 चलें। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 पर वाई की वैल्यू 0 है। तो जैसे मुझे ये 2 पॉइंट मिले, मैंने एक लाइन खींच दी। तो ये रेड कलर लाइन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ ए लाइन फॉर 2x - 3y = 12। वापस से सेम पॉइंट करते हैं, y को 0 रखते हैं पहले, तो x की वैल्यू 6 आ गई बिकॉज 12/2। और दो सेकेंड टाइम x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू हो गई 12/-3 तो -4। इन दोनों को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया 6,0, दूसरा पॉइंट 0, -4। तो विद इन दिस ग्राफ वी कैन से कि दिस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर वो मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। तो आंसर इज 6,0। कभी कभी सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ्स में ये भी पूछा जाता है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एनक्लोज्ड विद इन दीज 2 लाइन्स एंड y एक्सिस और x एक्सिस समटाइम। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के लिए यदि मैं इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट मानता हूँ तो आई कैन हैव बेस AC जिसकी वैल्यू 6 होगी, +2 -4। तो इसको ऐड करूंगा तो दिस विल कम 6। और हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट भी 6 ही होगी क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 6, 6, 36/2, 18 इज द आंसर। ये एक एडिशनल पार्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिमिलरली न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए आई हैव मैनी मेथड्स लाइक सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बट हियर फॉर सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकाल कर सेकेंड में सब्सटीट्यूट करना, मीन्स पुट और either value of x or y from equation 1 to equation 2. So let us check. From first we have calculated 6 - 3y, the value of x. Put in equation 2. Equation 2 में put करके देखते हैं तो this becomes 2, x की जगह 6 - 3y, -3y 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 6 12, 2 3 = 6y -3y = 12, 6y 3y -9y, 12 से 12 कैंसिल, तो दिस y gives 0। सब्सटीट्यूट दिस y = 0 × 1 और 2, कोई से भी रख के निकाल सकते हो। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट में रखता हूँ y, ओके, सो 12 - 6y - 3y = 12, 6y - 3y becomes -9y, 12 to 12 cancel, तो y = 0। Now put this value of y = 0 into equation number 1 and और इक्वेशन नंबर 2 यू कैन पुट इन आइदर इक्वेशन। जैसे ही मैं y = 0 इसमें पुट करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, x = 6, विच वाज माय सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ और अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल मेथड। वी कैन ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ द अदर मेथड्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।